वो ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ KX2 লাইট অ্যাটাক ড্রোন। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নিজেদের তৈরি লাইট অ্যাটাক ড্রোন প্রকাশ্যে আনতে চলেছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। এটি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য দেশে নির্মিত সার্ভেলেন্স প্লাস লাইট অ্যাটাক ড্রোন KX2 এর ছবি। बांग्लादेश का बड़ा मूव सामने आया है। बांग्लादेश ने इस जंगी सूरत हाल में KX2 लाइट अटैक ड्रोन बना लिया है, मेड इन बांग्लादेश। दोस्तों, ये जो ड्रोन बांग्लादेश ने बनाया है, इससे इंडिया में अपनी धाक को बढ़ाया है। ये बम को भी कैरी कर सकता है, बॉम्ब के साथ साथ जो मार्टर शेल होते हैं उसको भी दोस्तों ये कैरी कर सकता है। फिर इसके साथ साथ ये सुसाइड अटैक भी कर सकता है और दुश्मन के ऊपर नजर रखकर उसके ऊपर हमलावर भी हो सकता है। मैं समझता हूं इस हालात में बांग्लादेश ने KX2 लाइट अटैक ड्रोन बनाकर छोटा नहीं बड़ा हमला कर डाला है और ये असल में है सर्जिकल स्ट्राइक। और भारत को समझ आ जानी चाहिए कि बांग्लादेश टेक्नोलॉजी के मैदान में बांग्लादेश की जो विमान बाहिनी है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। বাংলাদেশ ने जनाब KX2 लाइट जो अटैक ड्रोन है, लाइट वेट है और इसको बना लिया है बांग्लादेश की विमान बाहिनी ने। ये दोस्तों इसके जो फंक्शंस हैं वो आपके सामने मैं रखता हूं, किस तरह से ये बम को भी कैरी कर सकता है, फिर मार्टर शेल को भी कैरी कर सकता है और इसके साथ साथ ये सुसाइड अटैक दुश्मन के ऊपर ये पूरी की पूरी नजर रखकर फोकस करके उसको, और जैसे ही इसको ऑपरेट किया जाएगा तो ये दुश्मन के ऊपर हमलावर भी हो सकता है। यानी ये एक सीक्रेट रैकी भी कर सकता है, इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। किस तरह से जो बांग्लादेश के साइंटिस्ट है, विमान बाहिनी है, बांग्लादेश की एयरफोर्स है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, इसको बनाया है। मैं समझता हूं कि भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत का जो पड़ोसी मुल्क एक पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश भी है। और बांग्लादेश में जब इस तरह से एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, इस तरह के जो ड्रोन बनाए जाएंगे, तो हिंदुस्तान कांप उठेगा। हिंदुस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, लिहाजा बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों आइए ये वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश ये खुद बना रहा है दोस्तों। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। ये है KX2, बड़ी अच्छी शेप है यार इस ड्रोन की। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নিজেদের তৈরি লাইট অ্যাটাক ড্রোন প্রকাশ্যে আনতে চলেছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। এটি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য দেশে নির্মিত সার্ভেলেন্স প্লাস লাইট অ্যাটাক ড্রোন KX2 এর ছবি। বাহ, সার্ভেলেন্স দেখে নেই এর একটি অরিজিনাল ভিডিও ক্লিপ। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বার্ষিক মহড়ায় ড্রোনটি পরিদর্শন করেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নিজস্ব প্রযুক্তিতে নির্মিত KX2 ড্রোন সিস্টেম অতি শীঘ্রই উদ্বোধন করতে যাচ্ছে বিমান বাহিনী। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে এই ড্রোনগুলো নজরদারির পাশাপাশি 60 মিলিমিটার বা 82 মিলিমিটার মর্টার শেল অস্ত্র হিসেবে বহন করতে সক্ষম। আপনারা জানেন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো নির্মিত হয়েছে একটি লাইট অ্যাটাক ড্রোন, যার নাম KX2। নিজস্ব প্রযুক্তি, গবেষণা এবং স্থানীয় সামরিক ও বেসরকারি উদ্ভাবকদের অংশগ্রহণে তৈরি এই ড্রোনটি দেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতায় যুগান্তকারী মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। তো কি এই KX2 ড্রোন? KX2 হচ্ছে একটি ট্যাকটিক্যাল UAV বা আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকল, যা নজরদারি ছাড়াও সীমিত অস্ত্র বহনে সক্ষম। এর মাধ্যমে টার্গেট অ্যাকুইজিশন, লাইট অ্যাটাক ও রিকনাইসেন্স মিশন চালানো সম্ভব। KX2 UAV এখনও প্রোটোটাইপ ও টেস্টিং পর্যায়ে রয়েছে। এটি মূলত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ব্যবহৃত ইতালির সেলেক্স ফ্যালকো ড্রোনের ডিজাইন থেকে অনুপ্রাণিত বলে মনে হচ্ছে। পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি মাইক্রোমিউনেশন যেমন 60 অথবা 80 মিলিমিটার মর্টার এবং RPG বহন করতে পারে। তো কারা তৈরি করবে ড্রোনটি? তৈরি করেছে দেশেরই একটি স্বনামধন্য ডিফেন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, যার সঙ্গে সামরিক বাহিনীর একটি গবেষণা শাখা ও স্টার্টআপ প্ল্যাটফর্ম যুক্ত।
ডিভাইসটির সফটওয়্যার ও নিয়ন্ত্রণ ইউনিট পুরোপুরি দেশীয়ভাবে বিকশিত। তো চলুন জেনে নেই KX2 ড্রোনের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য। ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট 125 কেজি। ডিজাইন শুরু 2024 সালে 25 কেজি। এবং ফার্স্ট ফ্লাইট 20 ফেব্রুয়ারি 2025। এন্ডুরেন্স 4 ঘন্টা, অ্যালটিটিউড 5000 ফিট। অস্ত্র বহন ক্ষমতা 2টি গাইডেড আনগাইডেড মাইক্রো মিউনেশন। রেঞ্জ 100 মিলিমিটার। wow. লাইন অফ সাইট। সেন্সর ইও, আইআর ক্যামেরা, লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডার। ভিডিও এনক্রিপ্টেড লাইভ স্ট্রিমিং। গঠন কম্পোজিট ফাইবার বডি, রাডার ইভেসিভ ডিজাইন। নিয়ন্ত্রণ স্যাটেলাইট, 4G বা নির্দিষ্ট RF সিগন্যাল। ডিজাইনড অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচার্ড বাই বাংলাদেশ এয়ারফোর্স। ড্রোনটি ব্যবহারের সম্ভাব্য খাত: সীমান্তে নজরদারি ও নিরাপত্তা বাহিনীকে সহযোগিতা, নদী ভাঙ্গন ও বন্যা পরিস্থিতির ওপর রিয়েল টাইম ডাটা সরবরাহ, জঙ্গি তৎপরতা ও অবৈধ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। ড্রোনটিতে সম্পূর্ণ দেশীয় সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে, যার ফলে বিদেশি ইউএভির তুলনায় 70% পর্যন্ত খরচ সাশ্রয়ী এবং রপ্তানি সম্ভাবনাও বিবেচনা রাখছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা বলছেন, দেশীয় প্রযুক্তিতে এমন একটি ইউএভি তৈরি হওয়া ডিফেন্স টেক ইন্ডিপেন্ডেন্সের দিকেই অগ্রযাত্রা। চীন, তুরস্ক ও ইরানের মতো দেশ যেখানে নিজস্ব ড্রোন ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কৌশলগত সুবিধা নিচ্ছে, সেখানে KX2 বাংলাদেশের জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। तो आपने ये वीडियो जो देखी है किस तरह से बांग्लादेश KX2 ये जो लाइट अटैक ड्रोन बना रहा है, उसके अंदर उन्होंने बताया कितना वेट उसके अंदर, ये फिर बम शेल और किस तरह से इसको कैरी कर सकता है, फिर उसके साथ साथ दुश्मन के ऊपर नजर रख सकता है। और देखें, जब आपका दुश्मन आपसे कई गुना बड़ा हो, आबादी के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, तो फिर आपको अपनी जो सरहद है ना, टेरिटरी, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत पड़ जाती है। अनफॉर्चुनेट, जब से शेख हसीना रही है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, तो उन्होंने मेरे ख्याल में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे उनकी जो फौज है इतनी मजबूत हो। वो तो यहाँ तक डील करने पर रजामंद थी, यानी इंडिया के ही जो चले हुए कारतूस कह लें, ऐसे विमान या फिर ऐसा असलहा, वेपन्स, एमुनेशंस लेने पर मजबूर कर रहा था मोदी, यानी हमसे वो कह रहे थे कि ले लो। लेकिन जो शेख हसीना है उसने एक ऐसा भी कदम नहीं उठाया जिससे उसकी जो आर्मी है वो मजबूत हो। लेकिन अब मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने फाइनली ये डिसीजन ले लिया है कि उसने अपनी फौज को, अपनी उसको नौबानी को, आर्मी को, बीजीबी को, सब फोर्सेस को उसने ताकतवर करना है, क्योंकि जो उसका दुश्मन है उसका कोई पता नहीं, कभी भी वो अग्रेशन दिखा सकता है। लिहाजा बांग्लादेश को हर वक्त तैयार रहना होगा, और तैयार रहने के लिए ज़रूरी है कि बांग्लादेश के पास अच्छे फाइटर जेट्स भी होने चाहिए, उसकी जो फ़ज़ाइया है, एयरफोर्स है, वो दुनिया में अपना आप दिखा सके। अब इसराइल छोटा सा मुल्क है, मैं उसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि किस तरह से उसने पूरी दुनिया में वक्त डाल रखा है, कोई उसके ऊपर मैली आंख से नहीं देख सकता, यानी क्योंकि वो आर्मी, उसकी जो उसके पास जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यूनेशंस हैं, यानी वो ताकतवर मुल्क है। इसी तरह बांग्लादेश भी इकोनॉमिकली तो कुछ बेहतर है, लेकिन इसको अब अपनी जो ताकत है वो बढ़ाना होगी। डिफेंस सिस्टम अपना बेहतर करना होगा, अपनी नौबानी को बेहतर करना होगा, विमान बाहिनी को बेहतर करना होगा, तब जाके इंडिया को टक्कर दे सकेंगे। मेरे ख्याल में अब बांग्लादेश का ये जो स्टेप है बड़ा अच्छा स्टेप है। एक तो J-10C, फिर ये ड्रोन बना रहे हैं, इसी तरह टैंक ले रहे हैं। मेरे ख्याल में अब उसकी तरफ बांग्लादेश जा रहा है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टेप है, और इससे इंडिया भी चौकन्ना रहेगा। इंडिया कभी जरूरत नहीं करेगा कि वो बांग्लादेश के ऊपर हमला कर ले। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।